Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. How are you? I hope all of you are fine and happy. This is Masood here, and you are watching my English channel Learn English with Masood. Today we are going to attempt another stanza, and it is taken from a Sindhi woman. Let's see. Barefoot through the bazaar, and with the same undulant grace as the cloth blown back from her face, she glides with a stone jar high on her head, and not a ripple in her tread. By John Stallworthy. This is the first stanza of the poem, and there are some key words that you have to be very careful about all these words. And when you keep these words in your mind, you can easily make explanation. Okay? The first one is barefoot, nange paun, bilkul. Undulant grace, and with the same undulant grace mean rise like wave, as the cloth borne back from her face, cloth, face covering, a glides another like smoothly, stride, stone jar is a symbolism of heavy burden, high on her head, high mean here we have priority, head, and not a ripple in her tread. Ripple mean bending, left, right, or tread mean walk. So these are the keywords, and you have to be very much careful about these keywords when you write explanation. Okay, now let's see one by one. First you will write explain with reference to context. Question number 5, part A, barefoot. First कुछ words लेंगे, then dot dot dot, and then in her tread. Don't write complete stanza reference. It carries 2 marks. These lines have been taken from the poem. When you write the word the poem, you have to write comma. If you just write these lines have been taken from, then don't write comma over here. Then with an inverted comma, a Sindhi woman. Be careful about the spelling, about the title. Here we have a singular noun. Sindhi is an adjective, woman is your noun, and this is singular noun, WOMAN, not WOMEN. Then write comma. Written by John Stallworthy. Again, the name of the poet must be correct, the name of the poem must be correct, otherwise you will get no mark. So, Sindhi woman, this is the 6th poem of your part 1, a Sindhi woman. Let's see. Is it clear? Okay. The next one is context. In context, you will write some theme about the poem. In this poem, the poet has paid a rich and glowing tribute. Tribute means Kharaj Tehseen, praise, accolade, rich, very much, to a working Sindhi woman. एक खातून जो सिंधी वुमन उसने देखी, उसको एक बड़ा ही अच्छा खराज तहसीन वो पेश करता है. He says that the Sindhi woman, अब देखें यहाँ पर मैंने प्लूरल नाउन यूज किया है, वुमेन, और पीछे मैंने दा लगा दिया ताकि आपको याद रह जाए. आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल यूज कर दिया, एंड देन वुमेन के बाद जो वर्ब है दैट इज आल्सो प्लूरल. द सिंधी वुमेन आर एन एम्बॉडीमेंट कंप्लीट, मुजस्सम of industry and labor. Industry and labor are the synonym, means मेहनत, हार्ड वर्क, वो जो मेहनत करते हैं, वो जो लेबर टॉयल करते हैं, दैट इज वो उसके एक मुजस्सम है. वो तमाम खवातीन जो सिंधी खवातीन हैं वो एक मेहनत का एक मुकम्मल मुजस्सम है. दे हैव चेंज देयर वर्क इनटू एन आर्ट. उन्होंने अपने इस काम को इस ऐसा तरीके से करते हैं कि इट बिकम्स एन आर्ट. The poet has also depicted another word of portray. This is portrayed and depicted, पेश करना, तस्वीर कशी करना, लफ्जों में किसी चीज को बयान करना.
अ वेरी रियलिस्टिक पिक्चर, एक बहुत ही जेन्युइन रियल पिक्चर्स, असली सूरत ऑफ स्लम इन कराची, कराची के उस गंदे इलाके, स्लम बैकवर्ड लो लाइंग एरिया, जहाँ मट्टी और कीचड़ होता है, गंद होता है, दैट इज नॉट अ वेरी फाइन प्लेस, slum, low lying area. He describes that those who never shy of doing their work, वो लोग जो अपने काम में शर्म महसूस नहीं करते हैं, अपने काम को तनदही से करते हैं, never shy, feel hesitation, reticent, पीछे रहने वाले, of doing their work, वो क्या होते हैं, deserve respect, वो एक इज्जत के मुस्तहिक हैं, deserve mean मुस्तहिक, entitled, those who are ready to bear the burden, और वो लोग जो अपनी जिंदगी में रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ओन करते हैं, ठीक है, ऑफ लाइफ, दोज हु आर रेडी टू बियर द बर्डन ऑफ लाइफ, वो जो अपनी जिंदगी में जिंदगी की जिम्मेदारियों से बड़े एहसन तरीके से चलते हैं, उन्हें पूरा करते हैं, दे नेवर फेल इन लाइफ, वो लोग जो है वो कभी भी नाकाम नहीं होते हैं, नेवर फेल इन लाइफ। हियर वी हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज, if you see the students, they have their responsibility, if you see the teacher, they have their responsibility, students क्या करते हैं, उन्होंने स्टडी करनी होती है, टीचर्स आपको टीच करते हैं, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इसी तरह पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपको लुक आफ्टर करते हैं। तो इस तरह ये पूरा निज़ाम जो है एक ज़िंदगी का, वो एक दूसरे के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ जो है वो बटा हुआ है। दे लीड, अगर इसको लेड पढ़ेंगे तो इट बिकम्स मेटल, सिक्का, और जब ऐसे लीड पढ़ेंगे तो उसका मतलब होगा जिंदगी गुजारना। दे लीड एन ऑनरेबल लाइफ, वो बड़ी काबिल एहतराम जिंदगी गुजारते, बड़े एहसन से वो उनकी जिंदगी गुजरती है, काम करने ही में अजमत है, ठीक है। वो आपने सुना होगा हार्ड वर्क जो करते हैं वो लोग कभी भी नाकाम नहीं होते। तो डिग्निटी लाइज इन हार्ड वर्क, हियर यू कैन ऐड डिग्निटी लाइज इन हार्ड वर्क। The poet is all praise for a hard-working Sindhi woman. अब इस पोएम में शायर ने बड़े प्यारे अंदाज से और बड़ी भरपूर अंदाज से, all praise का मतलब होता है भरपूर अंदाज से उसकी तारीफ की है। In spite of the weight on her head, उसके सर पर जो है बोझ है, उसको जिम्मेदारियां हैं, उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो उसने ओन की हुई हैं, इसके बावजूद शी वॉक सो एलिगेंटली, बड़ी खूबसूरत तरीके से, एलिगेंटली, नाइसली एंड ग्रेसफुली, और बड़े भावकार तरीके से वो चलती जा रही। अब यहाँ पर जो वॉक का वर्ड है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये वॉक का मतलब वही है जो हमने पीछे बयान किया, दे लीड एन ऑनरेबल लाइफ। वॉक मीन वो अपनी जिंदगी की जो काम काज हैं, जो ड्यूटीज हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दे परफॉर्म इन अ वेल मैनर वे, ओके। The next one is explanation. It carries 2 marks. अब जो हमने पिछले फर्स्ट स्टैंजा में, सेकंड पोएम में जिस तरह हमने फर्स्ट लाइन को यूज़ किया था, ये एरिस्टोटल की एक बहुत अच्छी डेफिनेशन है जो उसने पोएट्री की हुई है, स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। तो इसको हम यहाँ पर भी यूज़ करते हैं। In these lines, the poet in his spontaneous mean यकलक, फौरी, at once, जो आपके मुंह से किसी मंजर को देख के एकदम आपका जो इज़हार का, वाह what a beautiful scene it is, ये आपकी पोएट्री बन जाएगी। ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, अब यहाँ पर हमने डिस्क्राइब्स की जगह पर वर्ड यूज किया है पेज, क्योंकि ट्रिब्यूट जो है इसके साथ जो कॉलोकेशन है, जो वर्ड यूज करते हैं दैट इज पेज। पेज अ रिच ट्रिब्यूट टू अ सिंधी वुमन, वो बड़ा जबरदस्त, बड़ा रिच, बड़ा शाहाना किस्म की जो है वो तारीफ करता है सिंधी वुमन की, उसको खराज तहसीन, ट्रिब्यूट मीन खराज तहसीन पेश करना। Although she is barefooted, हालांकि वो नंगे पाँव है। अब एक और बात यहाँ पर याद रखें, when you have although, तो उसके साथ सामने जो आप स्ट्रक्चर यूज करेंगे, पेयरिंग होगा, वो कॉमे का पेयरिंग होगा, वहां पर हम yet का वर्ड यूज नहीं करेंगे, ठीक है। Although she is barefooted, she is walking with graceful gait, वो बड़े शाहाना तरीके से वॉक कर रही है। gait mean walk, pace, ओके। Although के साथ आपने येट को यूज नहीं करना, ये उसका मीनिंग यहां पर लेकिन वो आ रहा होगा। She is passing through a low-lying area of the bazaar of Karachi, वो एक गंदे इलाके से गुजर रही है, उस इलाके में जहां पर कचरा है, गंद है, पानी है, मट्टी है,
एंड वो एक अंडर डेवलपिंग एरिया है जहाँ पर अभी इस तरह की कोई साफ सुथरी जो है डेवलपिंग किस्म की कोई चीज़ नहीं है। शी इज़ पासिंग, उस कहाँ से गुजर रही है? अ लो लाइंग एरिया ऑफ कराची। और वो जो बाजार है, वो जो गली है, वो जो स्ट्रीट है, इट इज़ फुल ऑफ लिटर, कचरा, गन, कूड़ा करकट से भरी हुई है, एंड रबिश। रबिश एंड लिटर आर सिनोनिम, ट्रैश। हर फेस कवरिंग, उसके चेहरे पे जो दुपट्टा है, जो उसने चादर ली हुई है, इज ऑल्सो फ्लाइंग लाइक अ वेव इन द एयर, वो भी हवा में लहरा रही। दो शी इज कैरिंग अ हैवी स्टोन जार, अब जो उसने अपने सर पे एक बहुत बड़ा मटका रखा हुआ है, स्टोन जार है, हैवी है, ऑन हर हेड। देयर इज नो रिपल इन हर वॉक, इसके बावजूद, उसने एक वजन उठाने के बावजूद इसको बगैर किसी झोल के, बगैर किसी डावाडोल के, लेफ्ट राइट हुए बगैर वो चलती जा रही है। यानी उसकी चाल को देख के ये अंदाजा नहीं होता कि उसने कितना हैवी जो है वो स्टोन जार उठाया हुआ है। यहाँ पर आपने इस बात को ख्याल रखना है कि ज़िंदगी में जो लोग अपने काम को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कर रहे होते हैं, बाज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी होती हैं, बाज़ की छोटी होती हैं, तो देखने से उन्हें हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो किस तरह अपनी ज़िंदगी में वो काम परफॉर्म कर रहे हैं। इसी तरह उसके इस जार से हमें बिल्कुल नहीं पता चल रहा कि वो कितना हैवी है, बिकॉज देयर इज नो रिपल इन हर वॉक। रिपल मीन कोई उसने उसकी बोझ को महसूस नहीं कर रही। शी इज डूइंग हर जॉब। देयर इज नो इंडिकेशन दैट शी इज नॉट वेयरिंग शूज, और इसी तरह उसने ये भी नहीं जाहिर किया अपनी सफेद पोशी को छुपाया हुआ है कि उसने जो है शूज नहीं पहने हुए या उसके पाँव में कोई जूता नहीं है। यहाँ पर वो सेकंड स्टैंजा में इस बेयरफुट का और ज़्यादा बयान करेगा कि उसके पाँव में कितनी चुभन और कितनी तकलीफ वगैरह वो जो है वो फेस करती है। आई होप यू हैव गॉट द आइडिया। नेक्स्ट वन इज, इसी का हम आगे कंटिन्यू करेंगे। द सिंधी वुमेन्स बेयर फीट, उसके जो नंगे पाँव हैं वो एक सिंबल है, ठीक है। स्टैंड्स फॉर द डर्थ ऑफ मीन्स, डर्थ मीन कमी, उसके वसाइल काम है, मीन मतलब वसाइल, रिसोर्सेज, इनकम, ये उसके नंगे पाँव इस बात को जाहिर करते हैं। इसी तरह द जार ऑन हर हेड सिंबलाइजेस हर ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन हर लाइफ, और वो जो उसने सर पर जार लिया हुआ है वो भी उसकी जिंदगी की ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जाहिर कर रहे हैं, ठीक है। शी इज परफॉर्मिंग हर ड्यूटीज वेल, अब इतना वजन उठाने के बावजूद वो अपने इस काम में बड़े ही लगन के साथ, बड़े ही एहसन तरीके से परफॉर्म कर रही है। Her short resources, बहुत कम resources हैं, but she is doing her job very well. She bears the burden of her duty elegantly. उसने अपनी जिंदगी के इन मामलात को, इन रोजमर्रा की जो responsibilities हैं, उसको बड़ी खूबसूरती से अदा कर रही है। Elegantly, gracefully, beautifully, nicely. Her face covering that is waving in the air adds to her grace. इसी तरह जो उसने दुपट्टा लिया हुआ है, वो जो उसने चादर या जो शीट यूज की है, वो भी हवा में लहरा रही है, ये भी खूबसूरती में उसकी इजाफा कर रही है। उसकी चाल में, उसकी गेट में एक और खूबसूरती का रंग लेके आ रही है। इट मैचेस विद हर वाइब्रेंट, वाइब्रेंट मतलब जीता जागता, रोशन, बल्बले से भरा हुआ, विविड एंड ग्रेसफुल वॉक, उसकी खूबसूरत और जानदार वॉक जो है, जिसमें जिंदगी की रमक नजर आ रही है, उसमें भी उसकी खूबसूरती में इजाफा कर रहा है दुपट्टा। एक कोटेशन है, a strong woman is a woman is determined to do something. A strong woman is a woman, एक ऐसी woman है, is determined to do something, वो कुछ करना चाहती है। Others are determined not to be done, और कुछ ऐसे आइडल लोग हैं, जो कुछ ऐसे हैं जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से जान छुड़ाते हैं। They are not determined, ठीक है। They are determined not to do, वो कुछ काम ना करने के लिए determined, तुमने नहीं करना, कुछ भी हो जाए हमने कहना नहीं मानना। न्यूट गिंगरिच says perseverance is the hard work. अब ये perseverance का मतलब होता है मुस्तकिल मजाजी, लगातार, constantly you do after you get tired of doing the hard work you already did. अब जिस काम को आप बड़े मेहनत से करते हो, फिर उसको बार बार करते हो, तो it becomes your perseverance, मुस्तकिल मजाजी बन जाती है। चाहे आप उससे थक जाएं, लेकिन आपने उस काम को जारी रखना है, उस काम में आपने परफॉर्मेंस देनी है, आपने तमाम मुश्किलात का सामना करते हुए अपने काम को जारी रखना है। There is no substitute for hard work.
जिंदगी में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि हार्ड वर्क का निमर बदल हो। नेवर गिव अप, इसको मत छोड़ें। नेवर स्टॉप बिलीविंग, और इस बात पे यकीन रखें कि देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। नेवर स्टॉप फाइटिंग। और जब आप किसी चीज के लिए मेहनत करेंगे, अपने आप को लगा देंगे लगन के साथ, तो आपको फिर जाहिर बात है उसमें फाइट करनी पड़ेगी, उसमें आपको हार्ड वर्क करनी पड़ेगी। जैसे अभी आप ऑनलाइन लेक्चर्स ले रहे हो, तो यू आर फाइटिंग, ठीक है, यू आर फाइटिंग अगेंस्ट दिस कोरोना वायरस। इसकी जो हर्डल्स हैं, उसकी मुश्किलात के बावजूद आप ऑनलाइन जो है लेक्चर्स ले रहे हो। टीचर्स भी उसी तरह मेहनत कर रहे हैं, स्टूडेंट भी उसी तरह मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। होप हिक्स। दस दोज हु मीट द चैलेंजेस, ये वर्ड्स आपने याद रखना है। जैसे हम चैलेंजेस को मीट करते हैं, सॉन्ग को सिंग करते हैं और गेम को प्ले करते हैं, इसी तरह चैलेंजेस को मीट किया जाता है। Thus, those who meet the challenges in life can bear the fruit of their hard work. जो फेस करेगा, मेहनत करेगा, उसको पता होगा कि मुझे इसका रिजल्ट भी मिलेगा, मुझे इसका फ्रूट भी मिलेगा, और इंशाल्लाह आपको यू विल गेट द फ्रूट ऑफ योर लेबर। An ideal person will soon decay. हड हराम नकम्मे कुछ ऐसे भी हैं जो कि आराम कर रहे हैं, ठीक है। वो इन ऑनलाइन क्लासेस को इस तरह सीरियसली नहीं लेते हैं, वो पढ़ते नहीं हैं, और ना ही उन चीज़ों पर वो अपनी तवज्जो देते हैं जिन चीज़ों से उन्हें आखिर में फ़ायदा होगा। एन आइडल पर्सन विल सून डिके, वो बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। डिके मीन बर्बाद। बिकॉज हार्ड वर्क एंड परसिवरेंस इज अ की टू सक्सेस। ये मेरा ईमान है कि मेहनत और मुस्तकिल मिजाजी, जैसे अभी आपने पहले कोटेशन पढ़ी, सेम उसी तरह ये भी कोटेशन है कि मेहनत और मुस्तकिल मिजाजी कामयाबी की कुंजी है। की मतलब एक राज है इसमें छुपा हुआ कि अगर आप मेहनत करते हो तो आप इंशाल्लाह जरूर कामयाब होंगे। हार्ड वर्क इज इंडिस्पेंसिबल फॉर सक्सेस, ठीक है। हार्ड वर्क बहुत जरूरी है किसी भी सक्सेस को हासिल करने के लिए। फिर वही लास्ट में हम उसी तरह कंक्लूड करेंगे। द लैंग्वेज ऑफ द पोएम इज वेरी सिंपल, सादा तरीके से लिखी हुई है, बहुत उसमें जो वर्ड्स हैं इतने इतने बड़े मुश्किल वर्ड नहीं लगाए, बट द मीनिंग इट कन्वेज आर वेरी प्रोफाउंड। इसके अंदर जो मीनिंग या मैसेज जो कन्वे कर रहा है पोएट, वो बहुत गहरा है। एंड थॉट प्रोवोकिंग, और हमें सोचने के लिए उभारता है। थॉट प्रोवोकिंग, इंसाइट, बोथ द इम्प्लिस्ट एंड एक्सप्लिस्ट, इसके इनर मीनिंग और इसके आउटर मीनिंग्स। इंसाइट परसुएड करते हैं, कन्विंस करते हैं। इंसाइट का मतलब होता है किसी को उभारना, किसी को कन्विंस करना कि वो ये काम करे। प्रोवोक द रीडर टू मेक हिज ओन सटल रिफाइंड इमेजिनेशन। इस तरह रीडर पढ़ने वाला भी उसी तरह जिस तरह पोएट ने सिंधी वुमन के बारे में सोचा, अपने ख्याल को देखा, फ्रेंड पे कहता है आई विद स्टूप रिफ्लेक्ट, मुझे ये यहाँ पर लगा, तो वहां पर वो रिफ्लेक्ट क्या कर रहा है कि जो लोग वेट करते हैं, वेट उठाते हैं जिंदगी में, उसको सीख लेते हैं, दे आर ऑलवेज सक्सेसफुल, उसको उनको जिंदगी में हमेशा कामयाबी मिलती है। इमेजिनेशन एंड रिफ्लेक्शन, अब यहाँ पर हम इमेजिनेशन भी यूज करेंगे क्योंकि पोएट ने उसको ऑब्जर्व किया है, और रिफ्लेक्शन का वर्ड भी हम यूज करेंगे, लेकिन हम यहाँ पर स्पेकुलेशन भी यूज करेंगे। और इसी तरह हमारे पास स्पेकुलेशन का मतलब भी गौर खोज होता है, और कंसिडरेशन का मतलब होता है उन बातों के बारे में सोचना, उन तरजीहात को लेना जो आप जिंदगी में करना चाहते हो। तो जो लास्ट जो एंड पर पोएम की जो सेकंड स्टैंजा में आपको मिलती हैं, आई विद माई स्टूप, झुका हुआ हूं। रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट का वर्ड वहां आपने पढ़ा था ना, तो उसे अब समझ आई है। अब वो सोचता है कि जिंदगी का जो असल मकसद वो क्या है, वो ये है कि दे स्टैंड मोर स्ट्रेट, वो लोग बड़े ही सीधे सराते मुस्तकीम पर कायम रहते हैं। who learn to walk beneath a weight, जो ये सीख जाते हैं कि किस तरह बर्डन, किस तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी को परफॉर्म कर कर हम आगे बढ़ सकते हैं। दैट्स इट। ये हमारी थर्ड पोएम है स्मार्ट सिलेबस की, लेकिन एक्चुअली दिस इज द सिक्स्थ वन, अ सिंधी वुमेन। आई होप यू हैव गॉट द आइडिया। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इफ रेफरेंस इज इनकरेक्ट नो मार्क विल बी क्रेडिटेड। याद रखें, अगर आपका रेफरेंस गलत हो गया तो एग्जामिनर नेक्स्ट जो है वो आपके क्वेश्चन को चेक नहीं करेगा, बल्कि 0 मार्क्स आपको लगा देगा। ओके, आई होप यू हैव गॉट द आइडिया अबाउट this explanation about this stanza.
Thank you. If you still have any question, put your question in the comment box. I will explain your question. Thank you.